ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کی آج 17 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل و مناقب میں چند معروضات پیش کی گئی۔ مناسب سمجھا کہ اس جمعہ میں ان دو نواسوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے حسن اور حسین کی صورت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، ان کے چند ایک فضائل اور مناقب آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت مزید بڑھ جائے، اور یہ محبت میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو نواسے حسنین کریمین کی صورت میں عطا فرمائے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اٹھا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ علی کیا نام رکھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نام رکھا ہے حرب۔
حارب حرب، تو فرمایا کہ میں نے اپنے اس نواسے کا نام حسن رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی، یا یوں سمجھ لیں کہ جنگجو، کیونکہ نام ایسی چیز ہے، نام کا اثر بندے کی ذات پہ پڑتا ہے۔ نام اگر اچھا ہے تو ذات بھی اچھی ہوگی، نام اگر اچھا نہیں ہے تو اس نام کے برے اثرات انسان کی ذات پہ مرتب ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کسی بچے کا نام رکھ لیا جاتا ہے اور وہ بچہ اکثر و بیشتر بیمار رہتا ہے، کسی حکیم کے پاس یا کسی اللہ والے کے پاس جب لے جایا جاتا ہے تو اللہ والا آگے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا نام تبدیل کریں، نام ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نام کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے بچے پہ پڑ رہے ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ہمارے گھروں میں جو بچہ یا جو بچی رزق کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، اپنے اولاد کا نام اچھا رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ نام رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ نام رکھا جائے، حضرات صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات کے ناموں پہ نام رکھا جائے تاکہ ان کی برکات بھی ہمارے اولاد کو حاصل ہو جائے۔ آج کل ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کا نام یونیک رکھنا ہے، ایسا نام رکھنا ہے جو معاشرے میں کسی کا بھی نہیں۔ تو پھر جو نام ڈراموں میں، فلموں میں سنے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا رکھ لیا جاتا ہے، پھر ان کے اندر عادات بھی اسی طرح کی پیدا ہوتی، ایسا نام رکھ لیتے ہیں کہ جو مفہوم اور مطلب بتانے والے نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں جی کہ ہم نے یہ نام رکھنا ہے اپنے بچے کا یا بچی کا، اس کا معنی کیا ہے؟ تو ایسا نام ہوتا ہے کہ اس نام کو پہلے دیکھا نہیں ہوتا، سنا بھی نہیں ہوتا، کسی لغت میں دیکھا بھی نہیں ہوتا، تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں ابھی اس نام کا کیا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کا جو نام ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق رکھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس آدمی نے اپنے بچے کا نام میری محبت میں محمد یا احمد رکھا، جس آدمی نے اپنے بچے کا نام میری محبت میں محمد یا احمد رکھا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کی بخشش فرما دیں گے، صرف نام رکھنے کی وجہ سے اس بچے کی بھی بخشش ہو جائے گی، اس بچے کے والدین کی بھی بخشش ہو جائے گی، یہاں تک آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کی بخشش صرف اس وجہ سے ہو جائے گی اس کا نام محمد یا احمد ہوگا۔ دیکھیں نام کی کتنی برکات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کے، نسلوں کے صحیح نام رکھنے کی توفیق دے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ کہتے یا رسول اللہ حرب۔ فرمایا کہ نہیں، یہ حسن ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ میرا نواسا حسن ہے۔ پھر اسی طرح جب سال سوا سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ کیا نام رکھا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ حرب۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں، میرے اس نواسے کا نام حسین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے دونوں نواسوں کا نام خود رکھا، ایک کا نام حسن رکھا اور ایک کا نام حسین رکھا، اور ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین اسماء اہل الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حسن اور حسین یہ اہل جنت کے نام ہیں۔ حسن اور حسین کن کے نام ہیں؟ اہل جنت کے نام ہیں۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام میرے ان نواسوں کو دیے ہیں، ان نواسوں سے پہلے یہ دونوں نام جاہلیت ہو یا اس سے پہلے جتنی مخلوق گزری ہے کسی کے بھی نام حسن یا حسین نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں نواسوں کے نام تجویز فرمائے ہیں کہ ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین۔ آگے چلتا ہوں۔ اللہ پاک نے ان دونوں نواسوں کو ذات بھی عجیب قسم کی عطا فرمائی۔ یہاں تک فرمایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، سر سے لے کر سینے تک حسن اپنے نانا کی مشابہت رکھتے تھے۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینہ مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کی طرح تھے، اور فرمایا کہ والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کر نیچے پاؤں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی مشابہت رکھتے ہیں۔ یعنی ان دونوں ہستیوں میں، ان دونوں نواسوں میں خالق کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اثرات کو رکھ دیا تھا، میرے نبی کی ذات کے انوارات کو رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے نبی کبھی فرماتے ہیں یہ دونوں میرے پھول ہیں، کبھی میرے نبی ان دونوں نواسوں کے منہ میں اپنی مبارک زبان دیتے ہیں اور نواسے اپنے نانا کی زبان چوستے ہیں۔ کبھی میرے آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے نواسے حسن اور حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کبھی کسی موقع پر، کبھی کسی موقع پر یہ دونوں حسنین کریمین کبھی اپنے نانا کی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے نانا کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی نانا اپنے دونوں نواسوں کی سواری بنتے ہیں۔ ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ دونوں نواسوں کو حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا، دائیں کندھے پہ حضرت حسن ہیں اور بائیں پہ حضرت حسین ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ بولتے ہیں توجہ سے تشریف فرمائیں، تھوڑا سا توجہ سے بیٹھے تاکہ میری مزید طبیعت کھلے، میں آپ کو کچھ کہہ سکوں۔ تعجب نہ کریں، تعجب سے بیٹھتے ہیں نا، ایسے محسوس جیسے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں عام انداز میں، عام فہم انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو بھی اللہ پاک نے نانا بنایا ہوگا۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات کیا ہیں، نانے کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، کوئی دادے کی حیثیت سے بیٹھا ہے اور کوئی باپ کی حیثیت سے بیٹھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی اولاد کے ساتھ انسان کو عجیب قسم کا پیار ہوتا ہے۔ کیوں یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کل چھٹیاں ہیں نا اسکولوں سے، جب اسکولوں سے چھٹیاں ہوتی ہیں تو بچوں کی پلاننگیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم جناب اپنے نانکے جا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نانکے جا رہے ہیں، ننیال جا رہے ہیں، اپنے نانا اور نانی کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور نانے اور نانی کا اپنے نواسوں کے ساتھ پیار بھی عجیب قسم کا ہوتا ہے۔ پوتے پوتی سے پیار کم ہوتا ہے،
नवासों से प्यार नाने नानी का क्या होता है, ज्यादा होता है। मेरे नबी ने भी अपने नवासों से प्यार करके दिखाया है। मेरे नबी ने भी अपने नवासों से प्यार किया है। कभी कंधों पे बिठाया, कभी गोद में बिठाया, कभी अपनी जबान उनके मुंह में दी, नाम खुद रखे, घुट्टी भी खुद दी, नाम भी खुद रखे, अकीका भी खुद, और परवरिश भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई, परवरिश भी खुद फरमाई। तो मैं अर्ज करने लगा हूं, कहते हसन जो है वो दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन बाएं कंधे पर है। मेरे नबी ने दोनों नवासों को उठाया हुआ है। कुर्बान जाए मेरे नबी की मोहब्बत के। और तुमने फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जब इस हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहते वाह कितनी खूबसूरत सवारी है, कितनी खूबसूरत सवारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमने फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जबान से जब ये बात सुनी कि वो कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरत सवारी है, मेरे नबी ने फरमाया अगर सवारी खूबसूरत है तो सवार भी तो कितने खूबसूरत है, सवार भी तो कितने खूबसूरत है। ये मेरे नबी का अपने नवासों के साथ प्यार है। जब मेरे नबी ने अपने नवासों की परवरिश की है, मैं आगे बढ़ता हूं, एक रिवायत आती है ज़हन में, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ुल वफ़ात में है, प्यारे आका का आखिरी वक्त है, दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आती हैं, दोनों बेटों को लेकर, दोनों नवासों को लेकर, और आकर अर्ज करती हैं फ़क़ालत तुवर्रिसुहुमा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों नवासों को अपनी विरासत में से कुछ अता कर दीजिए। तो जो से सुनने वाली बात है, अपने इन दोनों नवासों को अपनी विरासत में से कुछ, बोलो बोलो, अपनी विरासत में से कुछ अता कर दीजिए। आपके ज़हन में सवाल आ गया होगा, अच्छा हज़रत फातिमा आई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपने बेटों के बारे में और नवासों के बारे में रसूलुल्लाह से कहा होगा, कहा कि अपने इन नवासों को अपनी विरासत में से कुछ अता कर दीजिए। आपके ज़हन में फौरन ये बात आ चुकी होगी कि शायद हज़रत फातिमा कुछ माल लेने के लिए गई थी, कोई जायदाद देने के लिए गई थी, या कोई मकान लेने के लिए गई थी, या किसी प्लाट का कोई मुतालबा करना था। यही तो मफहूम समझ में आता है। कहते फातिमा कहती है रसूल अल्लाह अपने इन दोनों नवासों को अपनी विरासत में से कुछ अता कर दीजिए। यही आता दिन में कि कुछ मालो दौलत, मालो असबाब मांगे गई। मेरे नबी ने क्या दिया, तो जैसे सुनिए, मेरे नबी ने क्या दिया, फ़क़ाला व अम्मल हसन फलहु हैबती व सुक़्बुदी व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती व जूदी औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनकी हयात व खिदमात ये किताब का उन्वान है, उसमें ये हदीस मुबारका मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी की ये बात सुने कि अब्बा जी अपने इन नवासों को अपनी विरासत में से कोई चीज अता कर दीजिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं अम्मल हसन फलहु हैबती व सुक़्बुदी, हसन को मैं अपनी तरफ से जो विरासत दे रहा हूँ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि हसन को जो विरासत में रही है वो मेरी हैबत में रही है और मेरी सरदारी में रही है। मैं हसन को अपनी विरासत में से अपना रोब अता कर रहा हूं और अपनी सरदारी अता कर रहा हूं, ये मेरी विरासत है। मेरे नबी ने कोई माल, बोलो, मेरे नबी ने कोई माल नहीं दिया, मेरे नबी ने कोई बाग नहीं दिया। क्या दिया है? हसन को मैं अपना रोब दे रहा हूं, हसन को मैं अपनी हैबत दे रहा हूं और हसन को मैं अपनी सरदारी अता कर रहा हूं।
मेरे नबी को अल्लाह ने रोब कितना दिया था, मेरे नबी को अल्लाह ने हैबत कितनी अता की थी। मेरे नबी अगर मदीना में तशरीफ फरमा है तो 100 मील के फासले पर मेरे नबी का रोब दुश्मन पे छा जाता था। अल्लाह ने ऐसी हैबत अता की थी, अल्लाह ने ऐसा रोब प्यारे नबी को अता किया था, अल्लाह ने ऐसी वजाहत हुजूर अलैहिस्सलाम को अता की थी। हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगी को देखते हैं, हमें पता चलता है कि किसी सहाबी में ये जुर्रत नहीं होती थी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। अल्लाह ने मेरे नबी को रोब भी ऐसा अता किया था। और ये खास तौर पर मेरे नबी ने फरमाया है कि मुझे 5 चीजें अल्लाह ने खास तौर पे अता फरमाई है जो पहले अंबिया को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। उनमें से एक चीज ये भी है, अल्लाह ने मुझे ऐसा रोब अता फरमाया है, ऐसा दबदबा अता फरमाया है, ऐसी हैबत अता फरमाई है कि 100 मील के फासले पर दुश्मन पे मेरी हैबत और रोब छा जाता है। तो ये हैबत, ये रोब, ये अल्लाह पाक ने, मेरे नबी क्या फरमाते, मेरी हैबत किसको मिली, किसको मिली, हसन को। और फरमाया कि मेरी सरदारी भी किसके पास है, हसन के पास है। मेरे नबी सारे अंबिया के सरदार हैं। आपका अकीदा है, बोलो भाई, अकीदा है, आप मानते हैं मेरे नबी सारे अंबिया के सरदार हैं और हजरत हसन भी सबके सरदार हैं। और मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह मेरे इस बेटे हसन के बारे में, मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरा बच्चा सरदार है, इन करीब अल्लाह ताला मेरे इस बेटे हसन के जरिए से मुसलमान को 2 ग्रोहों के अंदर सुलह करवाएगा। मेरे नबी ने खुद फरमा दिया कि मेरा ये बेटा हसन क्या है, सरदार है, और अल्लाह इस मेरे सरदार बेटे से, इस मेरे सरदार बेटे से मुसलमानों के 2 ग्रोहों में क्या करवाएगा, सुलह करवा। यही वजह है जब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात होती है, शहादत होती है, उनकी शहादत के बाद हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खिलाफत के मनसब पे फायद होते हैं, 6 महीने खिलाफत के मनसब पे फायद होने के बाद हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत को छोड़कर हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली थी। यही सुलह थी, यही 2 मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह थी। बात समझ आ गई? तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, मैंने अपनी विरासत में से अपनी हैबत और सरदारी किसको अता की, बोलो यारो, किसको अता की, हज़रत हसन को। और फरमाया व अम्मल हुसैन फलहु जुरअती वजूदी, मैंने अपने हुसैन को अपनी विरासत में से अपनी जुरत अता की है और अपनी सखावत अता की है, जुरत अता की है। और जुरत का अंदाजा आपने लगा लिया, आपके लिए मुश्किल नहीं है, ऐसी जुरत दिखाई है मैदाने करबो बला में अपने खानदान को कुर्बान करवा दिया है, यजीदियों के सामने झुकना बर्दाश्त, ये जुरत ही है, ये जुरत है। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई हुकूमत बन रही है, अगर कोई हुक्मरान बन गया, कोई खलीफा बन गया, वो फासिक और फाजिर है, वो जानी और शराबी है। हज़रत हुसैन को अल्लाह ने प्यारे नबी की जुरत अता फरमाई थी। हज़रत हुसैन कभी भी उस खलीफा वक्त के हाथ पर बैत नहीं करेगा, चाहे उसके लिए अपना खानदान भी कुर्बान क्यों करना पड़े। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई आपको? हज़रत फातिमा लेकर गई हुजूर के पास, या रसूल अपनी विरासत में से कुछ अता कर दीजिए। मैं नबी ने क्या फरमाया, हसन को मैंने अपनी विरासत में से अपनी हैबत दी है और अपनी सरदारी दी है, और हुसैन को मैंने अपनी विरासत में से जुरत और सखावत दी है। इससे मालूम हुआ, मसले की बात ये समझ लें, इससे मालूम हुआ कि अंबिया की जो विरासत होती है वो माल नहीं होता, अंबिया की जो विरासत होती है वो माल नहीं होता, अंबिया की जो विरासत होती है वो इल्म हुआ करता है। फिर इससे समझ जाना चाहिए
کہ जो एक डंडोरा पीटा जाता है बाग़ फिदक वाला, मौका मिला तो इस पर भी बात करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गई है और जाकर बाग़ फिदक का कहते हैं कि ये मेरी विरासत है, ये मुझे अता कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फातिमा के इस बात के जवाब में मेरे नबी का यही इरशाद नकल किया था कि किसी भी नबी की दुनिया में जो विरासत होती है वो माल नहीं होता, वो इल्म हुआ करता है, वो शरीयत हुआ करती है। ये बात सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस तशरीफ ले आई थी, इसमें कोई नाराजगी नहीं दिखाई थी। आज लोगों ने एक मखसूस तबके ने हज़रात सहाबा किराम और अहले बैत के दरमियान इतना बड़ा खला कायम कर दिया है कि शायद शेखैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा या किबार सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ कोई नाइंसाफी की थी। छोटी सी बात बताएं, मेरे नबी ने अपने आखिरी उम्र में आखिरी हज अदा करने के बाद सहाबा किराम को मुखातब करके ये बात इरशाद फरमाई थी कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। कितनी चीजें? दो चीजें, एक अल्लाह का कुरान और एक अपने अहले बैत, दूसरा अपने अहले बैत, हुजूर का खानदान। अब जब हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई है, मुखातब कौन लोग थे? बोलो बोलो, मुखातब कौन थे? सुनने वाले कौन थे? हज़रात सहाबा किराम थे, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे, साबिकून अव्वलून भी थे, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान भी थे। सवा लाख सहाबा किराम ने ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारका से खुद सुनी। मुझे आप बताएं, जिन सहाबा ने अपने नबी की ज़बान से ये इरशाद सुना हो कि मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा अपने अहले बैत, तो क्या हुजूर के विसाल के बाद उन सहाबा किराम ने नबी के अहले बैत के साथ कोई नाइंसाफी की होगी? जो सहाबा अपने एक एक अमल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने वाले हो, जो सहाबा नबी की हर अदा पे मर मिटने वाले हो, उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये तखय्युल कायम करवा दिया जाए कि शायद हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अहले बैत के साथ जुल्म किया था या ज्यादती की थी। अल-इयाज़ु बिल्लाह, ऐसा मामला नहीं हुआ। मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा हुजूर ने अपनी विरासत में से हज़रत हसन को अपनी हैबत अता की और अपनी सरदारी अता की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, मैं हज़रत हुसैन को अपनी जुर्रत अता करता हूँ और अपनी सखावत अता करता हूँ। इससे मसले की बात यह समझ में आती है कि अंबिया की विरासत माल नहीं हुआ करता, अंबिया की विरासत जो है वो इल्म हुआ करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? यहां तक मैं आगे चलता हूँ। मेरे नबी ने अपने नवासों के साथ, हसनैन करीमैन के साथ प्यार करके, मोहब्बत करके उम्मत को पैगाम दिया है, उम्मत को पैगाम दिया है और ये बताया है कि जो मेरे इन नवासों से मोहब्बत करेगा, जो मेरे नवासों से मोहब्बत करने वाले होंगे, उन लोगों को मुझ मोहम्मद की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। मैं नबी उनसे मोहब्बत करूंगा, फिर मेरी मोहब्बत को देखते हुए मेरा रब भी उन लोगों से मोहब्बत करेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौका पे इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब हसन को देखता हूं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं मैं जब हज़रत हसन को देखता हूं तो मेरी आंखें पुरनम हो जाती, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों भला? फिर पूछने पे वाकया बताया करते थे। कहते मैं एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं और सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में। कौन थे? हज़रत हसन कहां आए प्यारे आका की
अच्छा, दूसरे लफ्जों में नवासा आया किसकी गोद में? नाने की गोद में। नवासा आया किसकी गोद में? नाने की गोद में। तो नाने को प्यार नहीं आता? जब नवासा या नवासी अपने नाना नानी की गोद में आ जाए और आके लेट जाए, प्यार करे अपने नाना के साथ, अपनी नानी के साथ, तो क्या नाना नानी को प्यार नहीं आएगा? है जो नाने बन चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि नाने को अपने नवासों के साथ कितना प्यार होता है। हसन आए, आगे गोद में लेट गए, लेटकर प्यारे नबी की दाढ़ी मुबारक से खेलने लग गए। नाने और नवासे रखने वालों, आपकी दाढ़ियों के साथ भी आपके नवासों ने खेला होगा, नवासे खेलते होंगे। अगर नाने की दाढ़ी है तो नवासा दाढ़ी पकड़ता होगा, है नवासा कभी कंधे पे सवार होता होगा, कभी जनाब गर्दन को दबोच लेता होगा, अपने नाना से प्यार करता होगा। हाँ जी, मेरे नबी भी तशरीफ फरमा है, हते हसन आते हैं और आके गोद में लेट जाते। क्या कहने उन शहजादों की अजमत के, उन शहजादों की मोहब्बत के, उनकी फजीलत पे। हते हसन लेटे हैं, अबू हुरैरा फरमाते गोद में है और प्यारे आका की दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जबान मुबारक हते हसन के मुंह में देते। मेरे नबी का लुआब, मेरे नबी का लुआब, मेरे नबी का थूक मुबारक, ये वो लुआब है हजरत अली की जब आंखों पे लगता है तो आंखें ठीक हो जाती हैं। ये वो लुआब है जो अबू बकर की एड़ियों पे लगता है, जहां सांप ने ढस लिया था, एड़ी पे लगा तो सांप के जहर का असर खत्म हो जाता है। ये वो लुआब है जो खारे कुएं में डाला जाए तो वो कुआं भी पानी से मीठा हो जाया करता है। अल्लाह ने मेरे नबी को लुआब ऐसा अता किया था। मैं कहता हूं मेरे नबी ने अपने नवासों के मुंह में जो अपनी जबान दी है और नवासों ने अपनी नाना की जबान चूसी है, उन्होंने दुनिया में ही हौज़ कौसर के पानी के मजे ले लिए। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। तो अबू हुरैरा क्या फरमाते कि हुजूर की गोद में आकर लेट गए और हुजूर की दाढ़ी मुबारक को पकड़ा और प्यारे नबी ने भी आगे कैसा मोहब्बत का इजहार किया, अपनी जुबान मुबारक हते हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह में दी है। हते हसन ने अपने नाना की जुबान को चूसा है और मेरे नबी ने एक बात इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अहिब्बहु फउहिब्बहु, या अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत रखता हूं, मौला तू भी हसन से मोहब्बत फरमा। आगे हमारे मतलब की बात भी आ रही है। या तो फरमाया ना मौला मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू भी हसन से मोहब्बत फरमा। आगे चलते हैं। मेरे नबी ने असर की नमाज पढ़ाई, आखिरी रकत पढ़ा रहे थे, दोनों नवासे तशरीफ लाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पे सवार हो गए। और आपने वाकया मशहूर सुना है कि आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं और हुजूर का सजदा लंबा हो गया। ऐसे है ना, हुजूर का सजदा लंबा हो गया, सहाबाई किराम भी सजदे में पड़े हुए हैं। एक साहबी ने थोड़ा सा अपने आंख के कहते कन पट्टियों से देखा तो एक नवासा हुजूर के कंधों पे सवार है। मेरे नबी ने नवासे को अपने ऊपर से उठाया नहीं, हटाया नहीं, उतारा नहीं। जिस नवासे के लिए मेरे नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया, उस नवासे को नबी की उम्मत ने मिटाने कर वो गुलामी शहीद कर दिया। और वो भी कहते हैं प्यासा शहीद कर दिया। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो लोग नबी के नवासों से सच्ची मोहब्बत रखने वाले, ऊपर ऊपर से नहीं। जिन लोगों ने हजरत अली को शहीद किया हो, जिन्होंने हजरत हसन को जहर दे दिया गया हो, उन लोगों से क्या तो रखी जा सकती है? तो नवासे रसूल हजरत हुसैन को मिटाने कर वो बला में बुलाकर उनके हाथ में बैठ कर ले, उनसे किसी भी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। बाप को भी शहीद करने वाले
बड़े भाई को जहर देने वाले और आज छोटे भाई को सन 61 हिजरी में मैदान करबला में उनके खानदान के साथ उनको शहीद कर दिया गया। उनसे यही तवक्को की जा सकती है, किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। तो मेरे नबी ने सजदा क्या कर दिया? लंबा कर दिया। जब खुद नवासे रसूल मेरे नबी की कमर से उतरे हैं, मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया। मालूम हुआ अगर नाना नमाज पढ़ रहा हो, नवासा खेलते खेलते नाने के ऊपर चढ़ जाए तो नाना अपने नवासे नू थल्ले ना लावे। नबी की इस सुन्नत को, इस अदा पर इसको पूरा कर ले, नबी के इस अमल को पूरा कर ले कि मेरे नबी ने भी तो अपने नवासे के लिए सजदे को लंबा किया था। क्यों भाई? होना चाहिए ना। बसाकात बच्चे ना माओ के साथ ऐसा लाड प्यार करते हैं घरों में। आपने देखा होगा कि माँ नमाज पढ़ रही है तो बच्चा या बच्ची आके चिमड़ गई अपने माँ के साथ। मेरे एक वीडियो नजर से गुजरी, एक माँ नमाज पढ़ रही है तो पीछे से कोई वीडियो बना रहे, तो उसका जो बेटा था वो आ गया, वो माँ बैठ के नफल पढ़ रही थी, उसने पीछे से आके माँ को पकड़ लिया। अब माँ रुकू कर रही है, तब भी बच्चा साथ है, और पीछे से वो दूसरी औरत आवाजें दे रही कि बेटा आपकी मम्मा नमाज पढ़ रही है, लेकिन बेटा है कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। माँ ने रुकू भी किया, उसके बाद माँ ने सजदा भी किया। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, माँ ने सजदा किया है, एक हाथ जमीन पे रखे, दूसरे हाथ से अपने बेटे को पकड़ा हुआ है। ये माँ का प्यार है। माँ अल्लाह का भी फर्ज अदा कर रही है और अपने बेटे की तरबियत का भी फर्ज अदा कर रही है। ये वो माएँ होती हैं जिन माओ के बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। साडियां मावां ने सानू इदा पालिया। खैर, मेरे नबी ने नमाज पढ़ाई असर की, और लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर करता हूं। नमाज पढ़ाई, आखिरी रकम में दोनों नवासे आ गए, नबी पर सवार हो गए। खैर, नमाज मुकम्मल हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद मेरे नबी ने एक नवासे को उठाया, इधर बिठाया, और दूसरे को उठाया, इधर बिठाया, सहाबा की तरफ रुख किया। नमाज पढ़ाकर मुक्तदियों की तरफ रुख करके बैठना इमाम साहब का, ये मेरे नबी की सुन्नत है। ये मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी नमाज पढ़ा के ऐसे रुख चेहरा अनवर सहाबा की तरफ फेर लिया करते थे। मैं कहता हूं, ये चांद के मुखड़े वाली हसीन हस्ती जब अपने चेहरे अनवर को अपने सहाबा की तरफ फेरती होगी, जो परेशान हाल होंगे, थके हुए होंगे, जब अपने नबी के चेहरे को देखते होंगे, अल्लाह की कसम उनकी सारी थकावटें उतर जाया करती होंगी, थकावटें उतर जाया करती होंगी, परेशानियां खत्म हो जाया करती होंगी। अपने नबी के चेहरे को देखकर कितना सुकून हासिल करते होंगे। आज हम उनके बारे में तरह तरह के ख्यालात रखते हैं कि फलां साहबी ऐसे था, फलां ऐसे था, फलां वैसे था। भाइयों, ये फैसला करने से पहले अपनी हैसियत को देखो। क्या मेरे पास अथॉरिटी है? क्या मेरे पास कोई जनाब कसवटी है? क्या मेरे पास कोई पैमाना है कि मैं अपने ईमान को सहाबा के ईमान के साथ जांच सकूं? या मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है मैं सहाबा किराम की मोहब्बत को, उनके ईमान को मैं परख सकूं? याद रखना, अगर किसी सहाबी के बारे में मेरा आपका नजरिया गलत हो जाएगा, वो तो शान वाले थे, शान वाले हैं और शान वाले रहेंगे। वो अल्लाह से रजा पाने वाले थे, रजा पा चुके हैं और रजा पा रहे हैं। कल क़यामत के दिन नबी की रिफाकत में वो सहाबा नबी के झंडे के साए में जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आज हम अगर कोई नजरिया गलत रखेंगे तो अपना बेड़ा गर्क करेंगे, अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। खैर, मेरे नबी ने रुख फेरा, एक सहाबी को अपने नवासे को दाएं कंधे पे और एक को बाएं कंधे पे बिठाकर मुतवज्जे हुए, कहते लोगों, मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूं। इशारा किया, मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूं। सहाबा बैठे हुए, मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूं। ये हसन और हुसैन हैं। तो जो है आपकी कहो जरा सुभान अल्लाह, आगे अपने मतलब की बात आने वाली। ये हसन और
बोलो थोड़ा सा, ये हसन और हुसैन हैं, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं और इनकी नानी खदीजा है। दूसरी बात इरशाद फरमाई, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं और इनकी नानी खदीजा है। इनके वालिद अली अल मुर्तजा है, इनके वालिद अली अल मुर्तजा हैं और इनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है। ये मेरे नबी खसूसियात बता रहे हैं, अपने नवासों का तारफ करवा रहे हैं। ये हसन और हुसैन है, इनका नाना रसूलुल्लाह है, इनकी नानी खदीजा है, इनके वालिद अली मुर्तजा है, इनकी वालिदा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है और इनके चचा जाफर हैं, इनके चचा जाफर बिनते जाफर तैयार हैं, इनकी फूफी उम्मे हानी है, अली की बहन, इनकी फूफी उम्मे हानी है। और फरमाया इनके मामू मेरे कासिम बेटे हैं, इनके मामू मेरे बेटे कासिम बिन मोहम्मद हैं। और आप जानते हैं मेरे नबी के कितने बेटे, ये भी इम्तिहान है, 3 है, बोलो यारो कितने बेटे? ये बात पक्की रखें दिल में, बेटियों के बारे में बात करने वाला हूं। कितने बेटे हैं? कासिम अब्दुल्ला, कासिम अब्दुल्ला, और इनको तैयब ताहिर भी कहते हैं। और एक बेटा इब्राहिम, बाद रिवायात में 4 भी आता है, कासिम अब्दुल्ला, तैयब ताहिर और इब्राहिम। लेकिन राजे कौल के मुताबिक मेरे नबी के कितने बेटे? 3 बेटे। और मेरे नबी क्या फरमाते हैं, इनके मामू हसन हुसैन के मामू कासिम बिन रसूलुल्लाह हैं। अपने बड़े बेटे को कहा हुजूर ने। अच्छा आगे सुनिएगा, मेरे नबी कहते मेरे सहाबा, इनकी जो खालाएं हैं ना, इनकी खालाएं वो रसूलुल्लाह की बेटियां उम्मे कुलसूम, रुकैया, ज़ैनब हैं। कितनी बेटियां? बोलो बोलो कितनी बेटियां हैं? खवारिज कहते हैं हजरत फातिमा हुजूर की बेटी है ही नहीं। खवारिज एक फितना गुजरा, वो कहते हैं फातिमा नाम की कोई बेटी हुजूर की है ही नहीं। वो कहते हैं हुजूर की सिर्फ 3 बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। वाफिज का फितना आया, वो कहते हैं हुजूर की एक ही बेटी है फातिमा, पहले 3 बेटियां नहीं। लेकिन कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह ने सही समझ अता फरमाई। हम मानते हैं कि अब हमारे नबी की 4 बेटियां, हमारे नबी की 4 बेटियां हैं। मैं कुरान से अर्ज पढ़ता हूं, जब आयत पर्दा नाज़िल होती है, अल्लाह की तरफ से कुरान नाज़िल होता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक, ए नबी अपनी अज़वाज से कहो। आगे व बनातिक, ये बनात जमा है बिंत की, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बिंत एक बेटी को कहते हैं, बनात एक से ज्यादा बेटियों को कहते हैं। और बोलो भाइयों, और जमा वाहिद जमा तो आती है कि नहीं आती? बिंत एक बेटी और बनात एक से ज्यादा बेटियां। कुरान भी कहते हैं कुल या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, ऐ नबी अपनी अज़वाज से कहो और अपनी बेटियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो और सारी मोमिन माओ से कहो कि जब घरों से निकले तो बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ कर निकला करो, पर्दे के साथ निकला करो। कुरान पाक की ये ऐत बतौर दलील के हमें समझ में आती है कि नबी की एक बेटी नहीं, नबी की 4 बेटियां। एक और बात अर्ज करूं, फिर एक और भी शक डाल दिया जाता है। कुरान पाक में आयत मुबाहला है, नजरान का एक वफद आता है ईसाइयों का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुबाहला करता है। मुबाहले में यह था कि आप अपनी औलाद को लेकर आए, हम अपनी औलादों को लेकर आते हैं। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो हलाक हो जाएगा। आयत मुबाहला कुरान पाक में मौजूद है। और मेरे नबी जो है हज़रत फातिमा को लेकर गए, हज़रत हुसैन को, हज़रत हसन को, हज़रत अली को, इनको लेकर चले गए पहाड़ पर।
नजरान के यहूदियों के पास कि लो जी मैं अपने अहले बैत को साथ लेकर आया हूं। इस ऐसे दलील पकड़ते हैं कि भाई देखो ना, नबी की एक ही बेटी है, यही वजह है कि हुजूर एक ही बेटी थी, एक को ही लेकर गए। अगर 4 बेटियां होती, हुजूर अपने साथ चारों बेटियों को क्यों नहीं लेकर गए? हमारे सीधे साधे मुसलमान जो कभी अपने उलमा के पास बैठेंगे वो कहते हैं हाँ यार गल तो ठीक है, अगर ऐते मुबाहला है, हाँ जी, इस हक और सच का, ये हक और बातिल का ये जनाब अमल होने वाला है, फिर हुजूर हज़रत फातिमा अकेली को क्यों लेकर गए, बाकी बेटियों को क्यों लेकर नहीं गए? सवाल बनते हैं सवाल। जवाब सुनो, ये जो मुबाहला होता है नजरान के ईसाइयों के साथ, ये सन 10 हिजरी में होता है। किस हिजरी में? 10 हिजरी में। मेरे नबी की वफात होती है 11 हिजरी में। ये मेरे नबी के साथ मुबाहला होता है 10 हिजरी में, और 10 हिजरी में मेरे नबी की एक ही बेटी जिंदा थी। 3 बेटियों का मेरे नबी की आंखों के सामने इंतकाल हो चुका था। जब 3 बेटियों का इंतकाल हो गया तो हुजूर ने एक को ही लेकर जाना था या चारों को लेकर जाना था? ये डंडोरा पीटा जाता है कि नबी की एक बेटी है, 3 नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं अपने उलमा का गरीन की नजर और गौर पर, उन्होंने साबित किया है कि मेरे नबी की 4 बेटियां हैं, एक बेटी। शुक्र करें अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल फरमाया है। खैर मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी अपने नवासों का तारफ करवा रहे हैं। ये मेरे नवासे हसन हुसैन हैं, इनके नाना रसूलुल्लाह हैं, इनकी नानी खदीजा है, इनके वालिद अली है, इनकी माँ फातिमा है, और इनके चचा जाफिर है, इनकी फुफी उम्मे हानी है, इनके मामू कासिम है, इनकी खालाएं रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम है। और फरमाया, आगे सुनने वाली बात है, फरमाया मेरे इन नवासों के नाना और नानी वो भी जन्नत में होंगे, वालिद और वालिदा वो भी जन्नत में होंगे, चचा और फुफी वो भी जन्नत में होंगे, खाला और मामू वो भी जन्नत में होंगे, और मेरे ये दोनों नवासे ये भी जन्नत में होंगे। और आखिर मेरे शाद फरमाया वमन अहब्बहुमा फिल जन्नह, मेरे ये दोनों नवासे जब जन्नत में होंगे, वमन अहब्बहुमा फिल जन्नह, और जो लोग मेरे इन दोनों नवासों से मोहब्बत करेंगे अल्लाह उनको भी जन्नत में दाखिल फरमा दे। खुश नसीब हो आप लोग, अल्लाह ने हमें नबी के सहाबा की मोहब्बत अता कर दी। अल्लाह हमें ये सच्ची मोहब्बत नसीब कर दे, हमारे दिल में ये सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए हजरत सहाबा किराम की भी और हजरत अहले बैत की भी। अल्लाह सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे ताकि कल क़यामत के दिन हमारा हशर इन हस्तियों के साथ हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों यक़ूलु हाज़ानी इब्नाया, ये दो मेरे बेटे हैं, फमन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मैं नबी फरमा रहे, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझे मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा है। अब फैसला मेरे आपके हाथ में है, हमने इन दोनों नवासों से मोहब्बत करके अपने नबी से मोहब्बत का सबूत देना है। जब नबी से मोहब्बत का सबूत मिलेगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह नबी की रिफाकत में, अहले बैत की रिफाकत में हमें जन्नतुल फिरदौस का दाखिला भी नसीब फरमा देंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।